Can you tell me like what to do with this data? Like how can I do this? What do you want to do? Like I have to solve this question. Agent ID, agent name, join data, status, and go. Yes. So for refresh, refer first sheet. So go to first sheet, right? And what you want agent name. Yes. Agent ID is here available. So you need agent name. So guys, we have not covered VLOOKUP so far, right? Right. So is this question from somewhere else you have got, Richa? Hello. Yes. Have you got this question from somewhere else? No. Like there is a question I have, like I know like how to use VLOOKUP, but still there I'm not getting the answer. Like I have applied the correct formula, So but Richa, still, please confirm, is it you are repeating the Excel class? I don't know. This is my first class, I think. So in first class, how you can get this 50 question Excel assignment? I think it's a previous class assignment. I don't know. I got the mail of this assignment. This is the wrong one. I have not shared this. Guys, anyone have this question? So this is something that you will get after once you will complete with all the topics we are supposed to cover, right? Okay, please can you tell me this? Where like I have put this VLOOKUP formula over here, but Mhm. still I didn't get the result. A4, D4, 5421. So where is the reference? Okay, so tell me, Hmm. here you will have to get right person name as per profit and loss, right? And we have not covered the VLOOKUP so far. So VLOOKUP always looks value from left to right, not right to left. And your lookup value right now in right, not in left. जो रेंज है आपका उसमें उसका फर्स्ट जो कॉलम होना चाहिए वो वो आपका लुकअप वैल्यू वाला होना चाहिए, राइट? बट इस वाले डेटा सेट में इट्स फोर्थ कॉलम, राइट? सो हियर यू वुड नॉट बी एबल टू यूज VLOOKUP, right? Although we learn this in next when we learn the VLOOKUP one, किस तरीके का डेटा है उसको हम VLOOKUP से भी कैसे सॉल्व करेंगे, we'll learn that also, right? Using choose function, that is advanced function. बट यहाँ पे VLOOKUP आपको यूज नहीं करना है. Here you have to use index and match, right? Okay. VLOOKUP से सॉल्व नहीं होगा आपका, क्योंकि आपका जो टारगेट वैल्यू है कहाँ पे है, डी कॉलम में है, राइट? सो सो Richa, I'll just come back to you right after this class because let me just cover the topic first. ठीक है, ये आप लोगों को अभी लर्न नहीं करना है, ये हम जब वीलू का वाला क्लास करेंगे उस समय आपके पास आएगा ये. आई डोंट नो व्हाई हाउ यू हैव गेट दिस असाइनमेंट. आपका ये फर्स्ट क्लास है ये रिचा, या इससे पहले आपने ज्वाइन किया था मेरा क्लास? नहीं फर्स्ट क्लास है ये. देन आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू हैव गॉट दिस सीट. गाइस, मैंने ये वाला सीट किसी को शेयर किया है अभी तक 50 क्वेश्चन वाला? नहीं बट मुझे मतलब ये थोड़ा पता है मेरे को VLOOKUP कैसे यूज करते हैं, हाँ सर गाइस, ये सीट दे देना सर. फाइन. इसलिए मैं हेलो थोड़ा सा पहले से ही हेलो सोल्व करने सर. की कोशिश हाँ कर रही हाँ, हूँ. नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन. यू कैन डू दैट, बट देखो क्लास में जब टॉपिक कवर करते हैं ना, तो यू आर सपोज टू फर्स्ट सॉल्व
जो मेरा वाला असाइनमेंट है, मैं असाइनमेंट टॉपिक के बाद शेयर करता हूँ वो वाला, राइट। सो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड वन असाइनमेंट विद यू गाइस, ठीक है। उस असाइनमेंट टोटल 20 क्वेश्चन है। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट वो 20 क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए। नीड टू लर्न, अंडरस्टैंड बेसिक। अभी देख रहे हो मैं बेसिक चीजें आप लोगों को सिखाता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, राइट। बहुत सारी चीजें आप लोगों को नहीं पता है, इसको यूज कर रहे हो बट यू डोंट नो हाउ टू यूज दैट, ठीक है। या फिर ऐसा भी होता है, ये चीजें होती है इसके अंदर। सो ओके, सो लेट्स फर्स्ट मूव स्टेप बाय स्टेप, एंड उसके बाद आप लोगों के एडिशनल क्वेश्चन, जैसे रिचाप के एडिशनल क्वेश्चन कुछ होते हैं, देन वी कैन कवर इन लास्ट, राइट। इससे क्या होगा, लास्ट डिस्टर्ब नहीं होगा। Okay guys, so let's get started, and first we'll learn references in Excel. So in Excel, let's go and let's learn the references. So in Excel, we have three types of references. One is relative reference, right? Second one is absolute reference, and third one is mixed reference. अब एक बात देखते हैं कि reference होता क्या है, right? So let me just open a new Excel sheet. हमने एक new Excel file open किया, right? And as we know that in Excel जितने भी सेल्स हैं, राइट, इस सीट में जितने भी सेल्स हैं सबका अपना अपना एक एड्रेस है, राइट। सपोज हमने क्या किया, हियर वी हैव नेम ऑफ स्टूडेंट, राइट। हमने यहाँ पे उसका क्लास डाला, राइट, एंड हमने यहाँ पे उसका मार्क्स डाल दिया, सब्जेक्ट एंड देन हिज मार्क्स, राइट। ये हमने डाला, हमने एक स्टूडेंट का नाम डाला ABC क्लास 10, राइट, सब्जेक्ट मैथ, and here I just type marks as 45. Similarly, student is same student, class same, but subject will change. I'll just say let's take 2 or 3 class, 3 subjected only. Math, then I'll say English. And हमने इसमें बोला कि 65 marks, right? So now what I want the sum of these two, right? So इसका फुल मार्क्स था 100, राइट, फुल मार्क 100 है। सो व्हाट आई वांट, फर्स्ट वी वांट सम ऑफ दिस 2 मार्क्स, राइट। जो 2 मार्क्स है उसका हमें सम चाहिए। सो फॉर दैट आई विल यूज सम फंक्शन, सम, देन हमने इसको क्या किया, रेफर किया, एक एक को हमने रेफर किया, एक सेल को हमने रेफर किया, राइट। यहाँ पे इस सेल का रेफरेंस पास किया, देन सेकेंड आई पास द रेफरेंस ऑफ दिस सेल, दोनों सेल का हमने यहाँ पे रेफरेंस पास किया है, एंड दैट्स इट। नाउ दिस विल रिटर्न द आउटपुट एज पर वैल्यू अवेलेबल इन दिस सेल, राइट। यहाँ पे बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, इस सेल का रेफरेंस यहाँ पे पास कर रहे हैं अपने फंक्शन में टू गेट द आउटपुट, राइट। नाउ सेकेंड रिक्वायरमेंट इज दैट हमें अब इसका परसेंटेज निकालना है कि व्हाट इज परसेंटेज ऑफ दीज टू। इंग्लिश में, मैथ में कितना परसेंटेज का आया है, एंड इंग्लिश में कितना परसेंटेज इसने किया है। सपोज परसेंटेज यदि 100 है, आई जस्ट चेंज दिस टू 75, राइट, एंड इसे भी हम 75 कर देते हैं। नाउ माय रिक्वायरमेंट इज टू कैलकुलेट द परसेंटेज, राइट। अब परसेंटेज निकालने के लिए टोटल मार्क्स इज दिस वन, एक सब्जेक्ट का टोटल मार्क जो है 75 है, दिस इज टोटल मार्क, और हमें इसमें देखना है कि मैथ में इसने कितना परसेंटेज स्कोर किया है, राइट। सो व्हाट विल द फॉर्मूला, परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे इसमें, एनी आइडिया, डिवाइड किससे कर किसको देंगे, डिवाइड मार्क्स करेंगे? डिवाइडेड बाय टोटल। ओके, सो मार्क्स ऑब्टेन्ड would be the numerator and total marks would be the denominator, right.
एंड हमने इसको, अब इस केस में भी देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे भी हमने रेफरेंस पास किया है. सो दिस इज माय फॉर्मूला, राइट. हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया. नाउ इट इज 60%. आई जस्ट पास. सो दिस इज 60%. 45 मार्क्स आउट ऑफ 75 एबीसी ने मैथ में 45 स्कोर किया है. सो हिज परसेंटेज इज 60%. नाउ अब यही काम हमें नीचे वाला जो सेल है उस पे भी करना है, राइट. सो फॉर दैट व्हाट आई डू, आई जस्ट select this and press Ctrl and D. ठीक है, Ctrl and D. हमने ये यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे देखो फॉर्मूला में सेल का रेफरेंस क्या है, D3 एंड E3, राइट. इसी फॉर्मूला को हमने नीचे की तरफ ड्रैग किया एंड नाउ इट्स रेफरेंस इज चेंज टू D4 एंड E4, राइट. सो बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर जो रिफरेंसिंग होती है दैट इज रिलेटिव रेफरेंसिंग. रिलेटिव रेफरेंसिंग मींस दैट जब हम फॉर्मूला को से वन रो नीचे मूव करते हैं तो उसका रेफरेंस भी वन रो रिलेटिवली चेंज हो जाता है, राइट. सो राइट नाउ यहाँ पे इसका रेफरेंस क्या है, D3 E3. जैसे हमने इसको नीचे ड्रैग किया, now its reference is changed to D4 E4. I'll just move this down again and now see again here reference is changed to D5 E5, right. And here we are getting a div error because E वाला जो सेल है उसमें वैल्यू 0 है, right. So value by 0, that's why it is returning you a div error, right. Similarly, if I just move down, then reference will change and see D6 and E6. So इस केस में हो क्या रहा है, जितना रो हम नीचे उसको मूव कर रहे हैं, its reference changing relatively, right. So such kind of referencing जिसमें आप फॉर्मूला को मूव करो एंड उसका रेफरेंस रिलेटिवली चेंज हो आइदर रो में या फिर कॉलम में, such kind of referencing is called relative referencing, right. अब इसको एक बार यहाँ पे देखते हैं. हमने क्या किया, here I just passed the reference of F3, राइट. इसमें भी हमने अभी कहीं कुछ भी फिक्स नहीं किया, ना ही इसका रो पार्ट फिक्स किया है, ना ही इसका कॉलम पार्ट फिक्स किया है, राइट. सो राइट नाउ इट इज रिटर्निंग अस द वैल्यू अवेलेबल इन F3 सीट, सॉरी F3 सेल, राइट. अब हम इसको क्या करते हैं, वन कॉलम राइट मूव करते हैं. आई जस्ट प्रेस Ctrl एंड R. नाउ सी, अभी क्या है, F कॉलम का रेफरेंस ले रहा था. Now here it is taking reference of column G, यानी कि एक कॉलम पहले यहां शिफ्ट हुआ. C the reference of this one, then जैसे हमने एक कॉलम राइट मूव किया, now it is taking reference of this column. So here reference is changing relatively. यहाँ पे कॉलम का रेफरेंस relatively चेंज हो गया. If I just move this down, Control D, now here यहाँ पे क्या था, 3 रो 3, now here row 4, यानी कि हम वन रो डाउन कर रहे हैं, then here it is changing the rows reference. इसी फॉर्मूला को हमने कॉपी किया and I'll just paste here, Control and V. Now see, जितना रो आप नीचे मूव कर रहे हो, here it is changing the reference of a row also. जहां पे आपका रो एंड कॉलम relatively change हो, such kind of referencing is called relative referencing, right. क्लियर है. एंड एक्सेल के अंदर हम कैलकुलेशन कर पाते हैं बिकॉज इवन वी कैन यूज एनी सेल एज ए वेरिएबल टू गेट आउटपुट, राइट, टू कैलकुलेट द वैल्यू. रेफरेंस लेते हैं, उस सेल के वैल्यू के बेसिस पे हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाते हैं. नाउ लेट्स सी अदर एग्जांपल, राइट. अभी हमने देखा ये रिलेटिव रेफरेंसिंग है. एक्सेल में बाय डिफॉल्ट जब भी हम फॉर्मूला के अंदर किसी भी सेल का रेफरेंस पास करते हैं दैट इज बीइंग रिलेटिव. नाउ लेट्स मूव एंड सी सेकेंड टाइप ऑफ रेफरेंसिंग, दैट इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. सो हियर वी हैव अ डेटा सेट, राइट, एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ एम्प्लॉय हैं
here we have employee and organization ने क्या किया, organization declared 20,000 bonus for all the employees. ठीक है, जितने भी employees था उन सब के लिए 20,000 बोनस का अनाउंसमेंट किया ऑर्गेनाइजेशन ने. नाउ अब इनकी सैलरी जो है एक जिस मंथ में बोनस आना है उस मंथ में इनकी सैलरी वुड बी दिस प्लस दिस बोनस अमाउंट. ठीक है, हमने इसको ऐड कर दिया एंड दैट्स इट. गाइस मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? हेलो, आ रही है सर. ओके. इतना शांत मत हो, मुझे भी डाउट हो जाएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा आवाज. राइट. सो अब इसमें क्या किया, इसने ऐड कर दिया. सो एम्प्लॉय आईडी 301 को सैलरी बनेगी 30,000 इन दैट पर्टिकुलर मंथ, जिस मंथ में इसको बोनस मिलेगा. नाउ आई जस्ट ड्रैग दिस डाउन. इससे हमने एक फॉर्मूला बना लिया एंड इसी को हम नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं. आई जस्ट ड्रैग दिस डाउन. जैसे हमने इसको ड्रैग किया नीचे की तरफ, नाउ हियर वी कैन सी दैट जो एम्प्लॉय 302 है एंड एम्प्लॉय 303, here the salary is same. Employee salary and salary after bonus both are same. Right, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ. एम्प्लॉय 301 है, ये तो हैप्पी हो गया बिकॉज ही गॉट द बोनस. बट ये जो नीचे के दो एम्प्लॉय है दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज इनके सैलरी में भी ये बोनस इंक्लूड होना चाहिए था बट ये इंक्लूड नहीं हुआ ड्यू टू रेफरेंसिंग एरर. राइट, एचआर पर्सन ने सही तरीके से फॉर्मूला यूज नहीं किया एक्सेल का एंड दैट्स व्हाई दिस इनको सैलरी नहीं मिला. राइट, सो नाउ इट्स आवर टास्क टू फिक्स दिस इशू. राइट, सो फॉर दैट अभी हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने फर्स्ट वाले सेल में जब इसको लगाया था फॉर्मूला, देन दिस वाज रिटर्निंग द करेक्ट रिजल्ट. यहां से इसने 20,000 पिक किया G10 से एंड B12 का रेफरेंस लिया, दैट इट्स फाइन. अब नीचे आते हैं एंड लेट्स प्रेस F2 इन योर कीबोर्ड. जैसे हमने F2 देखा, प्रेस किया, नाउ हियर वी आर सीइंग दैट इसका जो रेफरेंस है वो चेंज हो गया. यहाँ पे तो ब्लैंक वैल्यू है G11 में, बट हमें रेफरेंस किसका लेना है, G10 का, जहां पे बोनस अवेलेबल है. सो for that here we need to fix the formula. For that I'll just go here, press F2, then ये G10 है इसको select कर लेंगे. right, and I'll press F4 in my keyboard. F4 जैसे ही प्रेस करोगे, now जो relative referencing था G10 का, now it has converted into absolute reference. अब हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं. Now all the employees happy because सबको बोनस मिल गया. Right, and absolute reference means that जब हम किसी भी सेल का रेफरेंस जब हम एब्सोल्यूट करते हैं देन उसका रेफरेंस रिलेटिवली चेंज नहीं होता है, वो फिक्स हो जाता है. I'll just convert this in absolute reference G10 का. I'll just press F4 in my keyboard and that's it. अब हम इसको इस तरफ मूव करते हैं कॉलम में, कंट्रोल एंड आर. सी, हर एक सेल में ये G10 ही दिख रहा है. राइट, कहीं पे भी लेकर जाओ, हेयर इट इज G10. इसको नीचे की तरफ मूव करते हैं, कंट्रोल डी. सी, it is always referring to G10 because its row and column both part is fixed. Right, both part in absolute reference, so that's why ये relatively change नहीं हो रहा है. जब भी हमारे पास इस तरीके का सिनारियो हो जहां पे सिंगल सेल है, राइट, सिंगल सेल को हमें फॉर्मूला में मल्टीपल रोज या फिर मल्टीपल कॉलम्स में यूज करना हो, इन दैट केस ऑलवेज कन्वर्ट दैट द रेफरेंस ऑफ दैट सिंगल सेल इन एब्सोल्यूट रेफरेंस सो दैट वो रिलेटिवली चेंज ना हो. इस केस में भी हमने यही किया है. हमें ये सिंगल सेल
मल्टीपल सेल्स पे अप्लाई करना था, यूज करना था. So that's why we have just converted this into absolute reference. Clear है? Any question on this? Excuse me. Yes. What is the duration of the class? Just we have started, Richa, right? So it's Yes, you have started, but I'm asking like it's of 1 hour or 2 hours. So today we'll cover 1.5 hour. Okay. Okay. Any question, guys? यहाँ तक clear है? ये हम कंटिन्यू थ्रू आउट जो हमारा कोर्स है इसमें चलेगा ये. राइट, रेफरेंसिंग यदि क्लियर नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी. इवन व्हेन यू लर्न द कंडीशनल फॉर्मेटिंग वहां पे भी प्रॉब्लम करेगा ये, यदि रेफरेंसिंग सही से नहीं लगा पाओगे तो. एब्सोल्यूट रेफरेंस समझ में आ गया सबको? हेलो गाइस, आवाज आप लोग? Yes, sir. Okay. Now let's move to next referencing, right? And next referencing is mixed referencing, right? So here we have some data set. I'll just copy this, right? And I'll just paste here. Can you tell me about the paste special? Like what is this? What is the main function of this? Paste special is something we use to paste only values, right? A short key for this is Alt ES. Alt plus E plus S. It can copy the whole table. Copy is different thing, right? So copy is for Control and C. We use Control C to copy, and to paste we use paste special. Either we can use Control V if we want to paste everything. If we want only value to be pasted, so for that there we'll use paste special, right? Okay. अब हमारे पास जो डेटा है, so next data set is this one, right? So in my store there are two product, tea and coffee, right? अब जो shop यहाँ पे announce हुआ कि now just we'll have to apply some reduction to increase sales in these certain months, right? जनवरी में इसने बोला कि टी का जो प्राइस है will reduce the same by 10%, right? टी का जनवरी में 10% से रिडक्शन हुआ, फरवरी में 40 एंड मार्च में 80. सिमिलरली कॉफी का जो प्राइस है, राइट, दैट इज आल्सो इन सेम रेशियो इट हैज रिडक्टेड, सो दैट इसका सेल इंक्रीज हो जाए, या फिर जो भी बिजनेस डिसीजन इसने लिया एज पर दैट it has applied the reduction. Right now our task is that इस जनवरी में इसका जो टी का प्राइस क्या होगा, फरवरी में क्या होगा एंड मार्च में क्या होगा. we'll have to calculate that as per reduction decided for these different months, right? So जनवरी है, जनवरी में प्राइस में रिडक्शन इसने किया 10% का, राइट? इसने रिड्यूस किया है प्राइस अपना 10%. So for that I'll just use the simple mathematics, ठीक है? यानी कि टोटल जो प्राइस है, यानी कि इसका जो 45 है, 45 में से मुझे माइनस करना है 45 का 10%. So here we'll go, then here we have price, then in this price we'll have to reduce percentage of, जो यहाँ पे परसेंटेज जैन के लिए है, I'll just use that. अभी जो हमने यहाँ पे यूज किया है, the referencing is simple relative referencing and that's it. Now we are done. यानी कि जैन में जो प्राइस है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, that is 40 after deduction. इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है?
क्लियर है कैलकुलेशन फॉर्मूला? Can you please explain again? Like why you multiply C24 into C28? एनीवन कैन एक्सप्लेन दिस, यदि समझ में आ गया हो तो? यस सर, एक्चुअली हमें क्या करना है ना, टी का जो प्राइस है वो 45 है, बट हमें ना 10% रिडक्शन हो गया है, तो उसमें ना 10% घटा देंगे इसको। तो इस ये वजह से हमने ना ये फॉर्मूला लगाया हुआ है सर ने यहाँ पे। गुड, यही है। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, अभी 10% का रिडक्शन है, राइट? रिडक्शन इज 10%। सो 10% ऑफ 45 इज दिस वन, 45। इट मीन्स दैट ये जो अभी अभी जो करंट प्राइस है उसमें से हमें इसको माइनस कर देना है 4.5। सो करंट प्राइस इज योर दिस वन, राइट? एंड इसी को हमें माइनस करना है, सो दैट वुड बी द प्राइस फॉर जनवरी। इसी स्टेप को हमने यहाँ पे कवर किया है। So this is your price for actual price, right? And actual price में से हमने 10% माइनस किया है। Is it clear? Richa, No, is it clear? This no, is simple math, right? अभी क्लियर नहीं है अभी आपको? Still it's not clear? no, not clear. Okay. So let me just clarify you. Suppose if we'll have to apply the 10% of reduction in this price, then what we'll do? 10% reduction, right? 10% discount in टी प्राइस, जो एक्चुअल प्राइस है उस पर 10% का डिस्काउंट लेना है, तो क्या करेंगे? कितना 10% होगा इसका, बताओ? इसका 10% कितना होगा? दिस मल्टीप्लाई बाई 10%, यही होगा ना? So this is something we are going to deduct from this price. डिस्काउंट यदि मिलता है हमें, सर्टेन परसेंट डिस्काउंट मिलता है, तो प्राइस पे जो उसका एमआरपी होता है उसी में मिलता है हमें, राइट? हेलो रिचा, इज इट Yes, yes. इट? तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। हियर व्हाट वी आर डूइंग द सेम थिंग। सो हियर वी आर just giving the 10% discount in this MRP. MRP of T is 45, right? And here we have 10% reduction in the month of January. So 10% of 45 is 4.5, right? And so now the selling price in Jan would be actual price MRP minus reduction, right? And this would be the price for January, right? Isn't it? Okay. Yes. So यही हमने किया है। Here we have used the same in single formula, right? Here we have just created a formula for this, right? C24 into C24 is this one. Then 10% we have just deducted the 10% of this from this. So right now जो अभी हमने referencing लिया है, that is in relative reference. Now we'll have to get the price of coffee too. So for that, if I'll just drag this down, इसी फॉर्मूला को हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, कंट्रोल एंड डी। नाउ हियर you'll see that अभी इसका रेफरेंस क्या है? C24 एंड C28, राइट? हमने जैसे ही वन रो नीचे डाउन किया, हियर we'll see C25, so we are good with this C25, right? C25 इस कॉफी को रेफर कर रहा है, we are good, but we are not good with this reduction percentage because now this is referring to C29. So now what we need to do, we'll have to fix this, यानी कि ये जो रिडक्शन है दैट इज इन सिंगल रो, बट ये जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला इन मल्टीपल रोज।
सो व्हाट वी वांट, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में ये जो रो है रिडक्शन का, दैट वुड ऑलवेज रेफर टू रो नंबर 28 in this formula. So for that, here we need to fix its row. I'll just go here and ये जो सेल का एड्रेस है, इसमें रो पार्ट कौन सा है एंड कॉलम पार्ट कौन सा है? एनीवन? ऋचा सर बताइए। सी कॉलम है, हाँ, यस, 28 रो है। सी कॉलम है एंड 28 इज रो। ऋचा आप बताइए, इज इट करेक्ट है या कुछ और इसमें होगा? इसमें रो पार्ट कौन सा है एंड कॉलम पार्ट कौन सा है सेल के अंदर? हेलो ऋचा, कैन यू? हेलो Richa, can you tell me the row part and column part? Suppose I'm just giving example of this. So in this O22, which one is the row part and which one is the column part? In this cell, O is column and 22 is row. okay. Is it सबके लिए सब एग्री है इस पे? यस सर। Yes. इतना ज्यादा नहीं सोचना है, right? So these are the columns A, B, C, D and these are the rows 1, 2, 3. सो अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा था कि हमारा जो रिडक्शन परसेंटेज दैट इज इन रो 28. सो व्हाट आई वांट, जितने भी जब भी इसको हम यूज करें इन दो सेल्स में, राइट? सो जो इस टेबल में जब इसको हम यूज करें तो इसका रेफरेंस जो है दिस वुड ऑलवेज रेफर टू रो नंबर 28, right? So for that here we need to fix its row part. C28 है, इसका हमें row part fix करना होगा. So for that here we'll press F4 2 times. यानी कि जो रो वाला पार्ट है 28, उसके ठीक पहले हमें डॉलर साइन लगा देना है. And that's it. Now we are done. I'll just press here and हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे. नाउ अब ये दोनों का जो रिडक्टेड वैल्यू जनवरी के लिए जो यहाँ पे डिफाइन हुआ था, हियर वी आर गेटिंग द सेम F2. नाउ इट इज रेफरिंग द करेक्ट सेल. इसमें भी इसने करेक्ट सेल को रेफर किया है एंड हियर इट इज आल्सो रेफरिंग द करेक्ट सेल. दोनों में ये करेक्ट सेल को ही रेफर कर रहा है, राइट? नाउ लेट्स, अब हमने जनवरी का निकाल लिया है. नाउ आवर रिक्वायरमेंट टू मूव दिस फॉर्मूला टुवर्ड राइट साइड हम इसी को मूव करेंगे एंड विल सी दैट इफ वी आर गेटिंग द करेक्ट रिजल्ट. हमने कंट्रोल एंड आर प्रेस किया. नाउ फॉर February एंड मार्च हियर वी आर गेटिंग आउटपुट एज 0, राइट? ऐसा तो है नहीं कि हमें February एंड मार्च में पैसा लेना ही नहीं है, राइट? फ्री में देना है, राइट? सो हियर वी नीड टू फिक्स द सम पार्ट, राइट? पार्ट इज दैट, यहाँ पे देखोगे आप, ये जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस इज इन सिंगल कॉलम, कॉलम सी. सो जब हमने इसको मूव किया राइट साइड, नाउ यू कैन सी दैट इसका कॉलम का रेफरेंस चेंज हो गया. नाउ इट इज रेफरिंग टू कॉलम डी. सो व्हाट वी वांट इस थ्रू आउट इस टेबल के अंदर ये जो प्राइसेस हैं दो प्रोडक्ट के, टी एंड कॉफी के, that would always refer to column C. So for that here we need to fix the column part of this one, and for that here we'll press F4 3 times, या फिर डॉलर आप डायरेक्ट लगा सकते हो ये जो कॉलम वाला पार्ट है उसके ठीक पहले, राइट? यू कैन इवन अप्लाई द डॉलर डायरेक्टली and that's it. Either you can press F4 3 times to fix the column, or you can apply dollar sign just before the column part, and that's it. Now let's move this to right side, control and R.
and then control D. Now here we have value selling price for January, February and March as per this reduction. ठीक है, एंड इसमें जो हमने रिफरेंसिंग यूज किया है, हियर यू कैन सी एक जो रिफरेंसिंग है इसमें हमने सिर्फ कॉलम को फिक्स किया था, रो को फिक्स नहीं किया था. सो दैट्स व्हाई हियर यू कैन सी दैट जो फर्स्ट वाला टी का जो प्राइस है इट इज रेफरिंग टू C24, बट हमने इसको वन रो नीचे डाउन किया. नाउ इट इज रेफरिंग C25 एंड इज रेफरिंग टू दिस कॉफी, राइट. सो इसमें इस केस में सी वाले पार्ट में वन कॉलम पार्ट इज इन एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड रो इज इन रिलेटिव रेफरेंस. तो इसका रो का रेफरेंस है वो रिलेटिवली चेंज हो रहा है, बट कॉलम का रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा. सेकेंड वाला पार्ट है दिस वन C28. सो हेयर रो पार्ट इज फिक्स, बट जब हम राइट साइड मूव करेंगे then here you can see इसका कॉलम का रेफरेंस चेंज हो रहा है. So such kind of referencing where either row or column is in absolute reference and other part is in relative reference. So such kind of referencing is called mixed referencing. So there are three types of reference in Excel. One is relative reference, second one is absolute reference and third one is mixed reference. Relative reference में सेल का रेफरेंस रिलेटिवली रो एंड कॉलम दोनों का चेंज होगा. एब्सोल्यूट में दैट वुड बी फिक्स्ड रेफरेंस, जो एब्सोल्यूट रेफरेंस है किसको कन्वर्ट करते हैं दैट वुड बी फिक्स्ड. एंड मिक्स्ड में वन आइदर कॉलम और रो वुड बी इन absolute reference and second one would be in relative reference. Right, clear है यहां तक? Now let's move to next part, next topic, right? And guys ऐसा तो नहीं कि आज मतलब हॉलीडे है तो थोड़ा सा उस टाइप का मूड है लोगों का? नहीं नहीं सर, ऐसा कहीं कुछ नहीं है. इतना ज्यादा शांत होना आप लोग, मैं कभी कभी डाउट हो जाता है कि आवाज मेरी जा भी रही है आप लोगों के पास कि नहीं जा रही है. सो सर कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मैं ही बोलने जा रहा हूँ बस. yes, so this is guys, this class is for all, right? And my intention is that जब हम आधा घंटा या एक घंटा डेढ़ घंटा जो बैठते हैं यहाँ पे, सो आई जस्ट वांट दैट दिस वुड बी यूजफुल फॉर यू गाइस. थोड़ा सा कुछ लर्न कर ले हम चीजें, ठीक है? इसी के लिए मैं हम इसको सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस, यदि नहीं समझ में आता है ना पूछो, आई जस्ट एक्सप्लेन द सेम इन 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, जितनी बार पूछोगे आप. बट जब मैं असाइनमेंट शेयर कर दूंगा राइट इन नेक्स्ट क्लास, देन व्हेन आई आस्क देन आई आल्सो एक्सपेक्ट दैट आप आंसर दो, ठीक है? तो ये चीज चलना चाहिए, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, 1 वे नहीं. एंड रिचा गोल्ड, इफ आर आस्किंग एनी क्वेश्चन दैट्स इट्स फाइन, ठीक है? नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, दैट्स फाइन. नहीं आ रहा है इसीलिए हम यहाँ पे हैं. Okay, so now let's move to very interesting topic and that is data validation, right? अब हमें ये देखना है कि एक एक्सेल शीट है मेरे पास, राइट? एंड हियर आई जस्ट वांट दैट यहाँ पे हमें एज चाहिए, राइट? एंड व्हाट आई वांट, जो एज वाला जो सेल है हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इसको. आई जस्ट गिव अ बॉर्डर एंड ऑल्सो आई जस्ट गिव अ बैकग्राउंड कलर. एंड व्हाट आई वांट, ये जो सेल्स हमने डिफाइन किए हैं एज के लिए, एज की एंट्री के लिए, आई जस्ट वांट दैट इस सेल में वैल्यू जो एंटर हो दैट वुड बी ग्रेटर देन 18, राइट? अभी हम इसमें कोई भी वैल्यू डालेंगे दिस विल एक्सेप्ट, राइट? माइनस भी डाल देंगे स्टिल दिस विल गेट. बट बिकॉज दिस इज एज फील्ड, सो इसमें हम चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट ये है, दिस इज समथिंग फॉर रिक्रूटमेंट पर्पस एंड हियर आई वांट दैट ये जो एज है इस वाले सेल में ओनली 18 प्लस है वही आ पाए, राइट?
So for that, here we'll have to use the data validation functionality of Excel, right? So to apply data validation functionality, we'll use sort key Alt, then A, then V, and here we have the data validation. Alt A, V, and then again V. But before applying data validation, just go here, select the entire cell. जितने भी cells हैं उसको पहले हमें select करना है. Then I'll press Alt A, V, and V 2 times. Data validation dialog box will appear. And यहाँ पे आप देखो कि allow में any value, right? It means that is saying that कोई भी value इसमें allow कर दो. But my requirement is that इसमें सिर्फ only 18 plus whole number हमें चाहिए. So for that I'll just click on this and here we have whole number. इसमें हमें age में whole number ही चाहिए. So here I'll use this. Then what I want in this value should be greater than 18. So for that here I'll go and then choose greater than, and here I'll pass the number that is 18. I'll click OK and that's it. इनिशियली जब हमने इसमें कोई भी वैलिडेशन नहीं लगाया था तो हम कोई भी वैल्यू इस पे डाल पा रहे थे. बट नाउ इफ आई जस्ट टाइप हियर 15, नाउ इट इज रिस्ट्रिक्टिंग अस टू इंटर दिस वैल्यू. इसने बोला कि दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन डेफिनेशन, राइट, डिफाइंड ऑन दिस सेल. Let's type 21. Now it has accepted because the value is more than 18. Again, if I'll try to type minus 21, this value is also less than 18, so it is not allowing. बट यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं, जब भी हम इसमें वैल्यू डालते हैं जो कि हमने वैलिडेशन लगाया है उसको उसके अकॉर्डिंग नहीं है, राइट. सपोज हमने यहाँ पे डाला 12, तो इसने एक मैसेज थ्रो किया, राइट. सो व्हाट वी वांट दैट ये जो मैसेज हो दैट वुड बी लिटिल बिट यूजर डिफाइंड. अभी जो आ रहा है मैसेज दैट इज फ्रॉम सिस्टम डिफॉल्ट मैसेज. हम इसको चाहते हैं थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव मैसेज थ्रो करवाना. So for that, again I'll select these cells and go to data validation, Alt A, V and V again. ठीक है. Then data validation to window है. Here we have 3 tabs. First one is settings, second one is input message and third one is error alert. अभी error alert वाला part है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि that is a blank one. So what we want here, we'll have to configure this. I'm saying that what we'll do, यहाँ पे title में हमने बोला age, then I'll say age should be greater than 18, right? And that's it. I'll click OK. Then I'll go again here and here I'll type 15. अब हमने जो मैसेज यहाँ पे डिफाइन किया है, here we are getting that message, right? Now this is informative and यूजर को ये पता चल जाएगा, इन यूजर को, कि हमें यहाँ पे वैल्यू क्या डालना है as per this message, right? If I press retry, then this will allow you to edit the cell again. Again, if you just type here 18, then still this will not allow because value should be greater than 18. So here I'll just go again and then type 19. Now this will accept. 18.5. This is whole number. हमने define किया, select किया only whole number. So even this will not allow you to enter any decimal value too. Right? So in this way, we can apply the data validation. Suppose आपने क्या किया, एक party plan किया, right? And in this party, you have 2 options. One is veg and second one is non-veg.
राइट। दो ऑप्शन आपको यूजर से लेना है कि हमारे पास जो हमारी टीम में जितने लोग हैं, राइट, उनमें से किसका प्रेफरेंस क्या है। सो हियर जस्ट से प्रेफरेंस एंड प्रेफरेंस वी वांट इन वेज और इन नॉन वेज। बट हमने क्या किया, एक टेबल बनाया, सपोज हमने इन सेल्स को डिफाइन किया एंड सब जितने भी एम्प्लॉय जितने भी पर्सन हैं, टीम मेंबर्स हैं, सबका हमने नाम यहाँ पे लिखा, राइट, एंड आई जस्ट रिलीज दिस सीट फॉर दियर इनपुट। बट उसमें से कुछ लोगों ने कुछ और ही लिखना शुरू कर दिया। someone write roll, right, someone चिकन रोल, एग रोल, राइट, इस तरीके से लिखना शुरू कर दिया, या फिर वेज रोल। बट माई रिक्वायरमेंट वॉज टू गेट ओनली इंफॉर्मेशन like either veg or non-veg, so we can count that how many employee preferences veg and how many we have for non-veg, right? So यहाँ पे हम चाह रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट लेना यूजर से, एंड हम वही इनपुट चाह रहे हैं जो कि हम यहाँ पे डिफाइन ऑलरेडी कर चुके हैं। सो फॉर दैट अगेन I'll use the data validation option. I'll select these cells, then I'll go Alt A, then I'll go again V and V, ठीक है। Then I'll go to setting here. अभी इसमें any value है, so that's why यहाँ पे कोई भी value डाल सकता है यूजर। बट what I want, इसमें only यही दोनों value input कर पाए यूजर, वेज और नॉन वेज। सो फॉर दैट आई वांट दैट यूजर को हम एक लिस्ट दे रहे हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यू, एंड इसी लिस्ट ऑफ वैल्यू से हम बोल रहे हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए, राइट। हमने इन दोनों सेल का रेफरेंस यहाँ पे पास कर दिया, एंड दैट्स इट। आइदर यू कैन जस्ट पास द रेफरेंस ऑफ दो सेल्स, या फिर यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू पास कर सकते हो विद कॉमा, यदि मल्टीपल वैल्यूज का लिस्ट बना रहे हो तो। देन आई क्लिक ओके and that's it. Now here we have the list of values, right? अब इसमें से यूजर सेलेक्ट करेगा and then this will take that. Suppose इसमें से कोई और यूजर है, कुछ और वैल्यू इसमें डालना चाहता है, suppose some is typing this, right? Again अब बिकॉज हमने ओनली ये दो वैल्यूज है, टेक्स्ट वैल्यूज है, उसी को हमने अलाउ किया है, सो दैट्स वाई इसमें यूजर कोई कुछ और नहीं डाल पाएगा, कोई और वैल्यू नहीं डाल पाएगा, राइट, एंड दैट्स इट। सपोज हमें इसको थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव बनाना है, सो फॉर दैट व्हाट आई वांट, जब भी किसी भी सेल पे यूजर वैल्यू सिलेक्ट करने जाए, आई जस्ट वांट टू डिस्प्ले अ मैसेज। सो फॉर दैट अगेन आई विल गो टू data validation, go to data validation, and this time I'm going to use the input message option. I'm saying that preference, and I'll say here select only select value from list, and that's it. यहाँ पे जो भी मैसेज आप डिस्प्ले करवाना चाहो यू कैन डू दैट। नाउ जैसे ही इस पे यूजर जाएगा, सिलेक्ट करेगा, नाउ द मैसेज विल बी डिस्प्लेड इन दिस वे, प्रेफरेंस एंड देन मैसेज जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो उस सेल के लिए यू कैन डू दैट, राइट, इन दिस वे। इसमें भी यदि हमें एरर जो मैसेज में थ्रो करता है, यू विल हैव टू कस्टमाइज दिस एज पर our requirement, right? Then even we can customize the same similar to this, जिसमें जैसे हमने customize किया था। Now let's move to third use case, and third use case is that ये वाला सेल है, right? इसमें हमें only यूजर को अलाउ करना है टेक्स्ट वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, टेक्स्ट के अलावा कोई भी वैल्यू हमें अलाउ नहीं करना है यूजर को, राइट। सो अभी के लिए हम इस सेल में ये जो रेंज है इसमें हम कोई भी वैल्यू अलाउ कर सकते हैं, 1 भी डाल दे रहे हैं, राइट। बट here we'll have to define a validation so that user can only input the text value,
अब इसको हम कैसे करेंगे? लेट मी select this, then go to data and data validation settings. So here we have any value. अब इसमें आ जाओ, अब मुझे बताओ कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, राइट? How we can restrict user to only enter the text value. टेक्स्ट लेंथ ले लेंगे सर। टेक्स्ट लेंथ, बट ये टेक्स्ट का लेंथ पे करेगा नहीं ये। अच्छा गुड, ट्राई कर रहे हो, दैट्स फाइन, गुड। सी, अब इसमें हम आपको बताते हैं कि आपका जो डेटा वैलिडेशन वर्क कैसे करता है। सो डेटा वैलिडेशन जो है, अलाउ, राइट? अभी जब हम सेलेक्ट करते हैं इसको, तो इसमें देखते हो फर्स्ट जो विंडो आता है, इसका फर्स्ट जो सेटिंग्स है, इसमें आता है अलाउ, राइट? अलाउ मीन्स दैट जो आप यहाँ से क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हो, जो भी क्राइटेरिया, होल नंबर में आपने एक एज का डाला, राइट? बोला कि इससे ग्रेटर देन समथिंग, सम एक नंबर दिया आपने, राइट? सो इट मीन्स दैट ये इसका, इसमें जो वैल्यू डालेगा उसका आउटपुट यदि ट्रू है, इट मीन्स दैट उसको ये अलाउ कर देगा, राइट? इनपुट करने देगा। यदि उसका आउटपुट यदि फॉल्स है तो उसको ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा, राइट? सो हियर वील हैव टू थिंक कि इसमें हमें इस चीज के लिए हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है क्या एक्सेल के अंदर जो हम ये बताए कि इस सेल का कंटेंट क्या है, राइट? एंड हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें इसके अंदर जो सेल का कंटेंट है उसको चेक करवाना है। यदि वो टेक्स्ट है तो उसको अलाउ करे, और यदि टेक्स्ट नहीं है यानी कि वहां पे फॉल्स आता है तो उसको हमें अलाउ नहीं करना है। सो कौन सा फंक्शन है जो यहाँ पे यूज करेंगे हम? सर अभी पिछली क्लास में बताया था ना, एज टेक्स्ट करके कर सकते हैं, वहां से पता चल जाता है हमें। Yes. So each text is a informatory function जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। each text and then here pass the value of this cell, right? इस टेक्स्ट, अब इसी को हम यूज करेंगे, इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर। I just select this, then go to data validation and I'll go to, यहाँ पे इसमें से कोई भी यूज नहीं करेंगे। here will use the custom because हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। so for formula here will use custom, then I'll pass the formula here and यहाँ पे जो रेफरेंस पास करोगे that would be in relative referencing। रिलेटिव में रहेगा तभी ये सब पे अप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है? फिक्स यदि कर दोगे तो सिर्फ H3 के सेल को ही देखेगा, नीचे के उस पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। सो व्हाट आई वांट दैट इज जितने भी सेल सेलेक्टेड हैं सब पे ये अप्लाई हो, राइट? सब पे एक एक करके चेक करें। सो आई जस्ट क्लिक ओके एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे हम डालते हैं इस रेंज में 1 2 3। नाउ आई टाइप ABC, दिस इज अ टेक्स्ट वैल्यू। सो इसको इसने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे हमने 1 2 3 डाला, नाउ इट इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस, राइट? सो इन दिस सेल नाउ ओनली टेक्स्ट वैल्यू इज अलाउड। नाउ थर्ड यूज केस इज दैट, अब ये जो रेंज है इसमें हमें डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करना है, यूजर को हमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं करने देना है। सपोज यदि यूजर ने यहाँ पे कोड लिख दिया A001, तो A001 अब ये दूसरे सेल में नहीं लिख पाए, राइट? सो इसके लिए हम क्या, कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे? हेलो, इसके लिए सर काउंट इफ कर सकते हैं। यस। सो हियर आई विल यूज काउंट इफ, देन आई जस्ट पास द रेंज ऑफ इंटायर, एंड इस केस में जो रेंज आप पास कर रहे हो इसको हमें एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज जब इसको डेटा वैलिडेशन के अंदर लगाएंगे एंड यदि रिलेटिव रहेगा
देन ये क्या करेगा, इसका रेफरेंस रिलेटिवली नीचे की तरफ चेंज होगा, राइट। सो व्हाट वी वांट, वी डोंट वांट दैट, हम इसका पहले फिक्स करेंगे रेंज। सो आई जस्ट फिक्स इट्स रेंज। देन अब जो यहाँ पे क्राइटेरिया पास करेंगे, क्राइटेरिया का रेफरेंसिंग हम रखेंगे रिलेटिव, इसको हम फिक्स नहीं करेंगे। व्हाट वी वांट, ये हर एक सेल पे जाके चेक करे फॉर्मूला के अंदर। सो दैट्स व्हाई वी वांट दैट इसका रेफरेंस change, oh sorry, fix now. So that's why we'll keep this as a relative referencing, and that's it. अब यहाँ पे जो आपका डेटा वैलिडेशन है वो ट्रू एंड फॉल्स रिजल्ट पे ही वर्क करता है, राइट। सो यूनिक वैल्यू मींस दैट, यानी कि इसमें हमें यूनिक ओनली अलाउड करना है। इट मींस दैट जो काउंटिफ का जो आउटपुट आ रहा है दैट शुड बी ओनली 1। जैसे ही 2 हो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे। सो नाउ वी आर डन विद द फॉर्मूला पार्ट। आई विल कॉपी दिस एंड देन आई select the entire data set, then I'll go to data and here I'll go to data validation, then I'll select the custom because यहाँ पे हम formula यूज कर रहे हैं। then I'll paste the formula here and that's it। अब इसमें हमने पहले से A001 डाल रखा है। I'll just pass here A002, then जैसे ही आप A001 डालोगे this will not allow you to enter the duplicate in it। क्लियर हो गया? पीछे के क्लासेस में जो हम लर्न कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वो सारा हम यहाँ पे यूटिलाइज करते आ रहे हैं। इन्फॉर्मेटरी फंक्शन हमने लर्न किया था। नाउ हियर वी हैव यूज्ड द सेम इन डेटा वैलिडेशन पार्ट, राइट। इसी तरीके से आप जो इन्फॉर्मेटरी फंक्शन है, जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लर्न करेंगे उसमें भी उसको हम यूज कर सकते हैं। उसमें भी हमें यदि एक सर्टेन टाइप का वैल्यू है उसको यदि हमें फॉर्मेट करना है कंडीशनली, देन देयर वी कैन यूज। टेक्स्ट है उसको अलग कलर में फॉर्मेट करना है, न्यूमेरिक वैल्यू है उसको अलग में, एरर आ रहा है उसको अलग में। सो इन दैट केस वी कैन यूज दोज इन्फॉर्मेटरी फंक्शन देयर टू। ठीक है, यहां तक क्लियर है? डेटा वैलिडेशन समझ में आ रहा है? यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क। यस सर। सर सर एक चीज पूछनी थी। हाँ। इसमें जैसे डेटा वैलिडेशन लग चुका है इन सब सीटों इसमें कॉलम्स में, तो इनको हटाने के लिए तो वहीं पे जाना पड़ेगा, बट जैसे यहाँ कोई सेल है जहाँ पे लगा नहीं है डेटा वैलिडेशन, इसको वहां पे पेस्ट करेंगे तो वो हट जाएगा क्या? बिल्कुल हट जाएगा। मैंने क्या किया, ये वाला सेल को कॉपी किया, यहाँ पे कोई भी डेटा वैलिडेशन नहीं है। मैं जाऊंगा एंड हियर आई जस्ट सपोज ये वाला सेल है, इस पे मैंने पेस्ट कर दिया कंट्रोल एंड वी। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन हट गया बिकॉज जिस सेल को हमने कॉपी एंड पेस्ट किया है, राइट, उस सेल पे कोई भी वैलिडेशन नहीं था। सो दैट्स व्हाई इसका वैलिडेशन हट गया। ठीक है, ओके। now let's move to next part and suppose here we have a data set, right, and इस डेटा सेट में हमने एक सर्टेन रूल लगाया। हमने बोला कि यहाँ पे वैल्यू जो होना चाहिए, राइट, आइडियल वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 100। ठीक है, आइडियल वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 100, बट यदि 100 से कम आ रहा है उसको भी हमें वार्निंग के साथ एक्सेप्ट करना है। सो फर्स्ट वील अप्लाई हियर वैल्यू, right, I'll just go then apply data validation here and I just go to data validation, then I'll say whole number and then that should be greater than 100। मैं सिर्फ greater than का एग्जांपल ले रहा हूं, you can just pick anyone, right, as per your, यदि between 150 and 100 के बीच का पिक करना है then you can pick that, equal to certain number then you can pick that।
So here you can just, there are lots of options available, you can pick as per your requirement. I'll just use this one for now. हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, डेटा वैलिडेशन लगा दिया। अब इसमें हम चाहते हैं कि यदि 100 से कम आ रहा है वैल्यू, तो उसको भी वो एक वार्निंग दे एंड एक्सेप्ट कर ले। अभी जब हम वैल्यू डाल रहे हैं, सपोज हमने यहाँ पे डाला 95, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। दिस विल नॉट अलाउ यूजर टू एंटर दिस वैल्यू, राइट। अगेन हम इस पे जा रहे हैं, देन दिस विल नॉट अलाउ यूजर टू एंटर दिस वैल्यू। बट व्हाट आई वांट, ये जो सेल्स हैं, इस पे जब भी जो हमने वैलिडेशन लगाया है, राइट, वो उसको जब भी ये ब्रेक करे, उस वैलिडेशन का जब भी वो ओबे ना करे, हमारा जो रूल है, इन दैट केस वो वार्निंग के साथ वैल्यू एक्सेप्ट कर ले जो यूजर दे रहा है, बट एक वार्निंग जस्ट थ्रो करे, और दैट्स इट। सो फॉर दैट आई जस्ट गो टू डेटा वैलिडेशन, देन आई गो टू एरर अलर्ट। हियर हमने इनपुट मैसेज का देख लिया, यदि हमें कुछ मैसेज शो करना है, देन हियर वी कैन जस्ट कॉन्फ़िगर एंड यूजर को मैसेज दिखना शुरू हो जाएगा। एरर अलर्ट, हमने यहाँ पे एरर भी कस्टमाइज करना सीख लिया। नाउ हियर यहाँ पे देखोगे एरर अलर्ट वाला जो टैब है, उसके अंदर यहाँ पे स्टाइल है। सो दिस स्टाइल इज नाउ स्टॉप। सो दैट्स व्हाई जब वैलिडेशन का आउटपुट फॉल्स आता है, सो वहां पे ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है, उसमें वैल्यू नहीं डालने देता है। बट माई रिक्वायरमेंट इज दैट एक वार्निंग के साथ उस वैल्यू को एक्सेप्ट कर ले। So here I'll just change the style from stop to warning. Then I'll click OK and that's it. अब यहाँ पे वैल्यू हम डाल रहे हैं 95. Now this will ask you, the value doesn't match the data validation restriction defined for this cell. Continue करना है. If I just press yes, then this will accept and then move to next cell. Right? बट सपोज आप चाहते हो कि अब इसमें वार्निंग भी थ्रो ना हो, जस्ट एक इंफॉर्मेटरी मैसेज थ्रो कर दे एंड दैट्स इट। सो फॉर दैट इवन वी विल गो टू डेटा वैलिडेशन एंड यहाँ पे स्टाइल में हियर वी हैव थर्ड ऑप्शन, दैट इज इंफॉर्मेशन। आई जस्ट क्लिक दिस, देन क्लिक ओके। यहाँ पे हमने वैल्यू डाला 65। नाउ हियर वी हैव ओनली इंफॉर्मेटरी मैसेज। जो वार्निंग आया था, तो वार्निंग में आपसे पूछ रहा था कि कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। यदि आप नो करते, राइट, यदि आपने नो एंटर किया, सिलेक्ट किया होता, नो बटन प्रेस किया होता, देन वो उस वैल्यू को अलाउ नहीं करता। बट जब आपने यस किया, देन दैट इट हैज एक्सेप्टेड द वैल्यू एंड मूव इन नेक्स्ट सेल। इस केस में भी इंफॉर्मेटरी मैसेज हमारे पास आ गया। And now here either we can cancel this or we can say okay, let's accept this, and in this way we can just configure the data validation in Excel to accept or reject the certain values. यहाँ तक क्लियर है? Any doubt in it? पूछना है किसी को इसमें कुछ? नो सर। ओके, सबको आवाज आ रही है ना? लियाकत, साजिद, आप लोग आवाज आ रही है? गजल? Yes, sir. Okay, so that's it for today, guys. What I'll do, I'll just share the assignment on this, right, and उसको आप लोग करो. In next class we'll meet again and cover the next topics we have. Okay, अभी इसमें है कई सारे टॉपिक, we'll cover that. यदि ज्यादा ना हो रहा हो तो कैन बी कंटिन्यू, या फिर ज्यादा यदि हो रहा हो देन आई जस्ट स्टॉप. You can continue. We can कर continue. सकते हैं सर कंटिन्यू। Okay, so now let's move to next part. ठीक है, next part is that अभी आपने क्या किया, here we have some data set, right?
एंड व्हाट आई वांट, ये जो डेटा सेट है, डेटा इसके अंदर जो अवेलेबल है, आई वांट दैट इसको कोई मॉडिफाई ना कर सके, राइट। आई जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट दिस सेट। जो डेटा इसके अंदर है उस डेटा को मैं चाहता हूं प्रोटेक्ट करना, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन आई डोंट वांट दैट। सो फॉर दैट इन एक्सेल वी हैव seat protection option. So to protect seat, we can even go to review set, review tab, and then here we have protect seat option, or we can go to seat and then right click, and then here you have option to protect seat, right? So either way you can use your mouse, just right click on seat, and then here you have protect seat option, or you can use your keyboard alt then R and PS, alt R PS to protect seat. अभी हमने क्या किया, यहाँ पे सीट को प्रोटेक्ट कर दिया. Right now I'm just not going to pass any password for now. I'll click OK and that's it. Seat protection is applied. अब इस सीट में हमारे पास जो डेटा है, राइट, इफ समवन वांट्स टू डिलीट दैट, देन ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनी मॉडिफिकेशन. ना ही वो डिलीट कर पाएगा, ना ही इसके अंदर कोई वैल्यू डाल पाएगा. ऑल द सेल्स ऑफ दिस सीट इज प्रोटेक्टेड, राइट. कोई भी डेटा मॉडिफिकेशन अब इसमें नहीं हो पाएगा. बट व्हाट आई वांट, माय रिक्वायरमेंट इज लिटिल बिट डिफरेंट. My requirement is that I want Alt W and again I'll press sorry, Alt R and PS again I'll just press to unlock protect this seat. So my requirement is that ये जो सीट है इसके सारे के सारे सीट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हो, राइट. बट आई वांट दैट ये जो दो सेल्स है ना, ये दो, ये अनप्रोटेक्टेड हो. सो राइट नाउ जब आप प्रोटेक्ट करते हो इसको, सीट को, तो सारे के सारे सेल्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं, ये दो सेल्स भी, राइट. ये भी, इसको भी, इसमें भी हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते हैं. बट व्हाट आई वांट दैट ये जो दो सेल्स हैं वो अनप्रोटेक्टेड हो, इवन वी अप्लाई द सीट प्रोटेक्शन, right. So for that, here we'll select these two cells, then press Control and 1 in your keyboard, Control and 1. ठीक है, Control and 1 जैसे ही प्रेस करोगे, this format cell will appear. Then go to protection, सबसे लास्ट में प्रोटेक्शन है, उस पे जाएंगे. Then by default एक्सेल के जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे लॉक्ड होते हैं, राइट. सो इफ यू वांट दैट कोई पर्टिकुलर सेल है वो अनलॉक्ड हो इवन आफ्टर अप्लाइंग द सीट प्रोटेक्शन कमांड, उस केस में हमें इसको अनचेक करना पड़ेगा. आई जस्ट अनचेक दिस, इन दोनों सेल्स को हमने सिलेक्ट किया हुआ है. देन आई जस्ट अनचेक दिस एंड आई क्लिक ओके एंड दैट्स इट. आई जस्ट मेक कलर भी इसको कर देते हैं, highlight this, and that's it. Now let's press Alt R and PS. Then here I'll pass the password 1 2 3. Then again I'll pass the password 1 2 3. जब आप पासवर्ड पास करोगे, then this will ask you to confirm the password, and then I click OK, and that's it. Now all the cells are now protected. But here सर ये आवाज ब्रेक क्यों हो जाता है सर? हाँ हेलो, हेलो अभी ब्रेक हो रहा है. हेलो सर. हेलो, सर आपकी आवाज ब्रेक हो जा रही है सर. अच्छा अच्छा, तो अभी ठीक है. No, अभी हाँ आवाज, it's ठीक है clearly सर. audible. नेट का इशू चल रहा है बहुत. अच्छा, ये सबके साथ हो रहा है या फिर लियाकत आपके साथ ही है? रिचा आपके साथ भी ऐसे ही है, आवाज ब्रेक हो रहा है? नहीं सर, मेरे साथ No, audible, sir, clearly. तो गाइस, तो आपका नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो सकता है, दैट्स व्हाई आवाज ब्रेक हो रहा होगा आपके साइड में.
राइट। Okay. तो नाउ हमने क्या किया, हमने जो अभी प्रोटेक्शन लगाया, राइट, नाउ ऑल द सेल्स आर प्रोटेक्टेड। इस सीट के सारे सेल प्रोटेक्टेड हैं एक्सेप्ट जिसका हमने रिकॉन्फ़िगर किया था सेलेक्ट करके एंड देन प्रोडक्शन में जाके हमने अनलॉक कर दिया था, दो सेल्स आर अनप्रोटेक्टेड। नाउ हियर वी कैन मॉडिफाई द वैल्यू अवेलेबल इन दिस सेल, राइट। हम इसको 65 डाल सकते हैं, वॉट एवर वी वॉन्ट हियर वी कैन चेंज। बट नाउ यहाँ पे देख रहे हो कि आपका सीट जो है प्रोटेक्टेड है, किसी और सेल्स पे चाहोगे आप कुछ करना, देन यू वुड नॉट बी एबल टू डू एक्सेप्ट दीज टू, राइट। अब हम यहाँ पे जाते हैं फॉर्मूला वाले पार्ट पे। सीट आपका प्रोटेक्टेड है एंड इन फॉर्मूला बार यू आर सीइंग द फॉर्मूला, राइट। सो व्हाट आई वांट, हम जब सीट प्रोटेक्टेड हो देन आई जस्ट वांट दैट फॉर्मूला बार पे यूजर ये फॉर्मूला भी ना देख पाए, राइट। सो फॉर दैट अगेन आई विल अनप्रोटेक्ट दिस सीट 1 2 3 एंड दैट्स इट। अब ये जो फॉर्मूला वाला सेक्शन है, बिकॉज ये जो फॉर्मूला में वैल्यू पॉपुलेट हो रहा है एज पर यहाँ पे जो हम इनपुट दे रहे हैं उसके बेसिस पे। सो फॉर दैट व्हाट आई वांट, जब ये सीट प्रोटेक्टेड हो तो फॉर्मूला बार में यूजर ये जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है वो भी ना देख पाए। सो फॉर दैट अगेन आई प्रेस कंट्रोल एंड 1 इन माय कीबोर्ड, देन आई गो टू प्रोटेक्शन एंड यहाँ पे आप देख रहे हो एक बॉक्स है, चेक बॉक्स है, दैट इज हिडन। बाय डिफॉल्ट हिडन जो है अनलॉक होता है। सो इफ यू वांट दैट जब सीट प्रोटेक्टेड हो तो उस जो कंटेंट है फॉर्मूला है वो इंडिविजुअल ना देख पाए, सो फॉर दैट आई जस्ट चेक दिस, then I'll click OK and that's it. Again I'll use Alt R and PS and OK. अब देखो पहले क्या था, यहाँ पे फॉर्मूला बार दिखता था, नाउ दिस इज प्रोटेक्टेड एंड नाउ हियर वी कैन सी इस सेल में जो फॉर्मूला है दैट इज नॉट विजिबल हियर। सो इन दिस वे वी कैन यूज सीट प्रोटेक्शन ऑप्शन to use the same seat to protect all the cells and some cells are open for user input। इसमें हमने क्या किया है, सारे के सारे सेल्स प्रोटेक्टेड हैं, बस ये दो सेल्स हैं जिसमें कि यूजर इनपुट कर सकता है, राइट। सेकेंड हमने यहाँ पे अप्लाई किया है सीट प्रोटेक्शन के अंदर हिडन ऑप्शन। सो जब सीट आपका प्रोटेक्टेड हो उस केस में हम चाहते हैं कि यूजर वहां उसका फॉर्मूला भी ना देख पाए। So for that also we have used control and 1 in our keyboard, then format cell में सबसे लास्ट में गए हैं प्रोटेक्शन में, then there we have checked the hidden part and that's it. So in this way we can apply the seat protection in Excel. सीट प्रोटेक्शन का अप्लाई करके हमने क्या किया, डेटा के मॉडिफिकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, राइट। बट व्हाट आई वांट, ये जो डेटा है हमारा, सर सर अब रहने दो सर, अब थोड़ा सा ही है बस, वर्कबुक प्रोडक्शन करके खत्म करते हैं, 8 मिनट और, ठीक है लियाकत। ओके। सो सपोज अभी तक हमने क्या किया, सीट प्रोटेक्शन अप्लाई करके एंड डेटा के मॉडिफिकेशन को रिस्ट्रिक्ट किया, राइट। बट व्हाट आई वांट, ये जो डेटा आपका है दैट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, राइट, एंड हम चाहते हैं कि इस डेटा को कोई अनऑथराइज्ड पर्सन इवन इसका जो कंटेंट है उसको भी वो भी ना देख पाए, राइट, विदाउट पासवर्ड। सो फॉर दैट हियर we'll use workbook protection, then for that I'll just go to save as, then go to this PC, कहीं किसी लोकेशन पे we'll just save the file, I'll just use the desktop and I'll say protection and today is 2601, then I'll go to tools and here we have general option, I'll click on this। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड टू ओपन, यानी कि हम
इस विदाउट पासवर्ड इस वर्कबुक को ओपन ही नहीं करने देंगे एंड यूजर को, राइट। I'll just pass a password as 1 2 3, then password to modify also I'll pass 1 2 3. I'll check read only recommended, even यदि modify password to modify यदि डाल भी देता है, then still will just alert user to open this in read only mode. Then I'll click OK. This will ask you to password to open, then password to modify, and that's it. हमने इसको सेव कर दिया, right? I'll just close this and I'll go to my desktop and here we have the file जिसको अभी हमने सेव किया है. I'll just open this. अब इस ये जो वर्कबुक है इसको ओपन भी नहीं करने दे रहा है. If you are the authorized person, right, then only you can open this workbook, otherwise not. अब हमने क्या किया, इसमें पासवर्ड पास किया, ओपन टू पासवर्ड एंड देन आई क्लिक ओके. नाउ दिस इज आस्किंग फॉर पासवर्ड टू मॉडिफाई. यदि पासवर्ड टू मॉडिफाई आपके पास है, देन यू कैन ओपन, देन यू वुड हैव फुल एक्सेस टू दिस वर्कबुक. अदरवाइज यू कैन ओपन दिस इन रीड ओनली मोड एंड सी द कंटेंट ऑफ दिस. ठीक है, यदि आपके पास फुल एक्सेस है, then even you can pass the password to modify and you can modify the data available in it. ठीक है, डेटा अभी भी आप इसमें मॉडिफाई कर पाओगे बट इसको सेव नहीं कर पाओगे बिकॉज राइट नाउ दिस इज इन रीड ओनली मोड. ये जो एक्सेल है आपका रीड ओनली मोड में है. यू कैन जस्ट क्रिएट अ कॉपी ऑफ दिस सेम वर्कबुक, बट सेम वर्कबुक को आप ओवरराइट नहीं कर पाओगे, सेव नहीं कर पाओगे इसमें जो वैल्यू अवेलेबल है उसको. I'll just close this and I'll go again. This time I'm just going to pass the password to open and also password to modify, and then I'll click OK. हमारे पास पासवर्ड टू ओपन भी था, पासवर्ड टू मॉडिफाई भी था, बट हमने वहां पे चेक किया था रीड ओनली, सो दैट्स व्हाई हियर वी आर गेटिंग दिस अलर्ट, राइट. सो फॉर दैट अब यदि हमें फिर भी इसको रीड ओनली मोड में ओपन करना हो, देन आई जस्ट क्लिक ऑन यस, बट बिकॉज हमें इसमें इसको इस पे फुल एक्सेस चाहिए, सो फॉर दैट आई जस्ट क्लिक ओके ऑन नो एंड नाउ आई हैव फुल एक्सेस. जो भी मॉडिफिकेशन करना है I can modify and then even we can save this too, right? And in this way we can use open to password or workbook protection option in Excel to even protect the sensitive data, even to view the unauthorized user. ठीक है, so that's it for today. We'll cover rest in next class. रेफरेंसिंग हमने कर लिया, डेटा वैलिडेशन कंप्लीटेड, सीट प्रोटेक्शन एंड वर्कबुक प्रोटेक्शन इज कंप्लीटेड. नाउ हियर वी आर लेफ्ट विद नेम मैनेजर, रिमूव डुप्लीकेट, टाइप ऑफ कैलकुलेशन, टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन एंड फॉर्मेटिंग इन एक्सेल, एंड दिस इज सम मैथमेटिकल फंक्शन, राइट. सो नॉट मच. ओके गाइस. Excuse me. Can you tell me like which type of questions will be asked in interview from Excel? Like I want to like the basis of questions, like this is this is a maximum, this is a high level question or medium, mediocre, or like these questions are basic. Can you differentiate? So in this topic, these are some medium level, right? Mid level questions. So from data validation you can be asked a question, from a referencing part question can be asked, seed protection and workbook protection, these are something the questions can be asked from this, right? So these are the mid level. Right now we are not in basic part, we are in mid, right? And from next class even, right, that would be mid level, but after that we would be moving toward the advanced part, right?
This kind of question can be asked even whatever assignment I am saying sharing with you guys, right? The assignment is designed as per interviewer, right? Interviews. So even you can just practice those assignments and just make yourself